Hello, very good morning. Today we shall read the chapter 8. क्लास 8 में आज हम 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ए शॉर्ट मानसून डायरी। एक छोटी मानसून डायरी। Before you read, do you know what a diary is? क्या आप जानते हैं कि डायरी क्या होती है? It is a record of personal experiences written day after day over a long period of time. डायरी दिन प्रतिदिन के व्यक्तिगत अनुभवों का एक लंबे समय तक लिखित वर्णन होती है। You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. भविष्य में और तुरंत की जाने वाली योजनाओं को लिखने के लिए भी आप एक डायरी का यूज कर सकते हैं। One of the most famous diaries published as a book is The Diary of Anne Frank. सबसे जो प्रसिद्ध सर्वप्रसिद्ध डायरियों में से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक है। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. Read on. जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रस्किन बॉन्ड की एक जो डायरी है उसके कुछ उद्धरण इसमें से हम पढ़ेंगे, जिनमें उन्होंने प्रकृति के शांत चमत्कारों में खुशी और दुख दोनों का वर्णन किया है। जॉयज खुशी एंड रिग्रेट्स दुखों का वर्णन किया है। रीड ऑन, पढ़ते जाओ। June 24, the first day of monsoon mist and its strength, how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill. Perhaps that's what makes the mist to so melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. Only an hour ago, the trees were ringing with bird song, and now the forest is deathly still as though it were midnight. Through the mist, Bijju is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I can't see him. तो जून 24 की बात है। मानसून के कोहरे का पहला दिन होता है और पहाड़ी पर कोहरे को चढ़ता देख कर के पक्षियों का बिल्कुल मौन हो जाना कितना बड़ा अजीब लगता है। शायद इसी कारण कोहरा इतना उदास होता है कि न केवल पहाड़ियों को छिपा लेता है बल्कि उन्हें यह शांत व स्थिरता से भी ढक देता है। केवल 1 घंटा पहले तक वृक्ष पक्षियों के गीत से गूंजते रहते थे और अब पूरे जंगल में मौत जैसा सन्नाटा है, मानो आधी रात बीत गई हो। मिडनाइट मीन्स आधी रात। और कोहरे के बीच से बीजू अपनी बहन को बुला रहा है। मैं उस पहाड़ी की तरफ भागते हुए सुन सकता हूं, पर मैं उसे देख नहीं सकता। फिर जून 25 हो जाता है। Some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year. The plants seem to know it too, and the first cobra lily rears its head from the ferns as I woke up to the
bank and post office. The mist affords a certain privacy. A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. तो नेक्स्ट डे 25 जून को कुछ शुरुआती मानसून की बारिश गर्म और नम और इतनी ठंडी नहीं होती और न ही ऊंचाई पर ठंड लाने वाली होती है, जैसा कि हम साल भर हमको मिलता रहता है। पेड़ भी इसे जानते हुए प्रतीत होते हैं और पहली नागफनी फर्न में से अपना सिर निकालती है। जब मैं बैंक और डाकघर तक चलकर जाता हूँ तो कोहरा एक प्रकार से मुझे एकांत देता है। एक विद्यार्थी जो लड़का होता है वह मुझे हिल स्टेशन और घाटी का एक वाक्य में वर्णन करने को कहा। उसने मैंने केवल इतना ही कह पाया, यह एक स्वर्ग जो हो सकता है, ए पैराडाइज। नेक्स्ट डे जून 27 को द रेन्स हैव heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousands of lychees. Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. In the evening, it attacked one of Biju's cows and but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming impreccations. As for the lychees, I shall soon get used to a little bloodletting every day. Other new arrivals are the scarlet minivets. The females are yellow, fitting silently among the leaves like brilliant jewels. No matter how leafy the trees, these brightly colored birds can't conceal themselves. Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. Along come a pair of dragons, unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. तो 27 जून को वर्षाओं ने अपने साथ कुछ आगंतुकों को भी आने की घोषणा कर दी, जैसे तेंदुआ और कई प्रकार की लीच, इसका मतलब है जोंकें, जोंक। कल दोपहर बाद स्कूल के नीचे नौकरों के मकान के पास से तेंदुए ने कुत्ते को उठा लिया। शाम को उसने बीजू की गायों में से एक पर हमला कर दिया, किंतु बीजू की माँ के चीखने और अपशब्द कहते आ जाने से वह भाग निकला। जहाँ तक जोकों की बात है, मैं जल्दी प्रतिदिन कुछ खून रिसने का आदी हो जाऊंगा। अन्य नए आगंतुक लाल चमकीले रंग की चिड़ियाएँ, जो मादाएं पीली होती है, चुपचाप पत्तियों के बीच चटकीले नगीनों के समान तेजी से उड़ती है। पेड़ चाहे कितना भी घना पत्तीदार हो, ये चटकीले रंग की चिड़ियाएँ स्वयं को छिपा नहीं पाती। हालांकि पूर्ण रूप से मौन रहकर भी वो कुछ देर के लिए न देखे जाने का उपाय तो निकाल ही लेती है। इसके साथ ही जो ड्रोंगो पक्षी का जोड़ा होता है, वो बेवजह गुस्सा होकर के लाल पक्षियों का दूर तक पीछा करता है। एक लता जो ओक का वृक्ष होता है, उसके मुख तने पर रास्ते के सारे कीटों को पकड़ते हुए तेजी से वो ऊपर चढ़ जाते हैं। अब जब वर्षा यहाँ आई गई है तो कीट भक्षी पक्षियों के लिए भोजन की कोई कमी भी नहीं रहेगी। A creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects always. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. तो जो कीट भक्षी पक्षी हैं उनके लिए भोजन की कोई कमी नहीं रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग वंस अगेन।
सेकंड क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क में करने। वाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बिज्जू? लेखक बिज्जू को क्यों नहीं देख पाता है? बिकॉज ऑफ द मिस्ट। किसकी वजह से? कोहरे की वजह से इसको देख नहीं पाता। व्हाट आर द 2 वेज इन विच द हिल्स appear to change when the mist comes up? जब कोहरा ऊपर चढ़ता है तो वो कौन कौन से 2 तरीके हैं जिनसे पहाड़ियां बदली प्रतीत होती है? एक तो ऑल द बर्ड्स स्टॉप सिंगिंग, इट मेक्स द हिल्स साइलेंट, द मिस्ट कवर्स द हिल्स सो दे कांट बी सीन। कोहरा जैसे ऊपर चढ़ता है तो सारे पक्षी गाना बंद कर देते हैं और पहाड़ियों को शांत बना देता है। कोहरा पहाड़ियों को ढक लेता है और वो दिखाई नहीं देते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन।